few minutes break for our guest. I welcome all the esteemed guests who just came to the seminar. I am really grateful for their presence and I welcome from my core of heart on behalf of law department. Again, where I was in my speech, just I take 1 minute to conclude it. Pakistani student of law. It's pleasure to have you all here today. As we all gather here for this event, we will be exploring valuable insights into launching a successful career in the income tax department, as well as gaining a deeper understanding of the income tax ordinance 2001. We hope today's discussion will provide both fundamental concept and advanced perspective on taxation. Let's dive in and make the most of this opportunity. Thank you for joining us. To start our event with the name of Allah who is most gracious and merciful, I would like to call Hazrat Iqrar for recitation of Holy Quran. يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am Hamad Khan, the student of law. गुलों के तो हैं क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं. कदम रखे जहाँ पर हैं मेरे महबूब मदनी ने, कदम रखे जहाँ पर हैं मेरे महबूब मदनी ने. ज़माने के महलों से वो दोनों गार अच्छे हैं. ज़माने के महलों से वो दोनों गार अच्छे हैं. वहाँ हर चीज़ अच्छी है. यूज़ करते हैं. और आने वाले फ्यूचर में अगर आप स्टूडेंट्स ये चाहें किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करें, कोई डिजिटल एविडेंस के ऊपर बात करें, तो वो टॉपिक भी हम यहाँ पे उसके रिलेटेड जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं. तो जो आपके सीनियर्स हैं दे नो के फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स, वुमेन राइट्स, इंटरनेशनल वुमेंस डे, हर चीज़ हम कोशिश करें कि हम कवर करें और इस सीरीज़ को इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे. आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सेमिनार्स एंड विल गेट who will share their expertise and guide us through this journey. First of all, I would like to invite Mr. Zishan. Please, sir, come on stage and guide us some for this event. First of all, I beg apologize due to my sore throat. You can hear me not properly. I am not aware that I have to speak few words in front of you on this topic because this is not my domain. But however, I can appreciate the efforts of Law Department, Head of Department Dr. Muhammad Adnan Sheikh Saab,
Mohsin Saab, and I am really grateful to Professor Dr. Hayat Aman Saab for his presence. He always graciously present in every seminar we organize in law department. The purpose of these seminars and workshops which law department are organizing for you people is only the purpose to educate you people with the practical dimensions of this field, because there are a lot of different dimensions of law, because income tax and tax practices are different domain in the law field. It is a segment from the corporate law. So I really appreciate and welcome our esteemed guest on this very important and crucial topic, because what I have exposure of the abroad, I feel that what is the lacking of Pakistani economy, why Pakistani economy is lacking in different aspects. What I have identified, there are certain aspects due to which we are facing inflation and different money laundering and all these aspects. Because I have two publications on corporate law, which is very relevant to the today's topic. One is the Panama and Pandora leaks, which was a scam in all over the world, and in which there were few Pakistani personalities which were mentioned in that scam. For that I have conducted the businessmen and the trade unions and all those who are having money from the different sources other than the salaries, they are less income taxpayers. So the main thing which we can achieve through income tax is to govern the state affairs through the income generated by the people of Pakistan, and it is expanded through the डिफरेंट सोर्सेज डेवलपमेंट में मुख्तलिफ उनमें यूज़ होती है. जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट इज मेंशन दैट वी हैव कंसोलिडेटेड फंड्स इन फेडरल लेवल एज वेल एज इन प्रोविंशियल लेवल, बिकॉज दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड स्पीच, दिस इज अ सडन. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं जनाब चेयरपर्सन आसम नज़ीर साहब, डायरेक्टर जनाब हयात अमान साहब, HOD साहब डॉक्टर मोहम्मद अदनान साहब, सजाद मंजूर साहब और अपने सीनियर्स जनाब मोहम्मद रोनस गाजी FCA, मियाँ अब्दुल सत्तार साहब FCA और मुल्तान अखबार एसोसिएशन सदर जनाब मलिक खादम हुसैन मितला साहब, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका प्रोवाइड किया कि मैं आप सब दोस्तों के सामने जो इनकम टैक्स में कैरियर है इसको स्टार्ट करने के बारे में आगाह कर सकूँ. और अगर जैसे जो शुरू में कहा गया जी कि अगर आप में से 5 स्टूडेंट्स भी अगर एज ए कैरियर आज मोटिवेट होकर ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी अचीवमेंट होगी. और यकीन करें इस वक्त मुल्तान के जो करीम है, मुल्तान के पूरे पाकिस्तान की जो करीम है, जनाब मोहम्मद रोनस गाजी साहब, मियाँ अब्दुल साहब, मलिक खादम हुसैन मितला साहब, ये आपके दरमियान मौजूद हैं जो इनकम टैक्स के ऊपर अबूर रखते हैं, एक अथॉरिटी रखते हैं. तो आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए आप इनके साथ बैठें, नंबर एक्सचेंज करें और गपशप करें. सबसे पहले तो मैं, क्योंकि सब यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि पहली बार मैं लॉ के स्टूडेंट्स से मुखातब हूँ. इससे पहले वकीलों के साथ ही हमारा वास्ता पड़ा है. डिस्ट्रिक्ट बार हो गई, हाई कोर्ट बार हो गई, मुल्तान टैक्स बार हो गई, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स. और आप दोस्तों के लिए क्योंकि इंतहाई खुश सब्जेक्ट है तो मैं कोशिश करूँगा इसको हम इंटरेस्टिंग वे में अपनी स्लाइड्स को मैं वो स्किप करके आपको बातें बताऊँ जो आपको कैरियर के तौर पर इसको मोटिवेट करें. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, जो सवाल हमसे जब मैं CA कर रहा था लाहौर में, मेरे उस्ताद ने किया था, जाफ़र हुसैन साहब ने ऑडिट पर हारे थे और उन्होंने पूछा था कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है. एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी साल में एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाती है, तो उसका पर्पज़ क्या है.
तो आप में से कोई बता सकता है वो क्यों करवाया जाता है? इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको सवाल को आप लोगों के लिए आसान करता हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न हम क्यों जमा करवाते हैं? क्या हर शख्स इनकम टैक्स देना चाहता है इसलिए जमा करवाया जाता है, या इसके अलावा कोई और वजह है? मेरा सवाल सब तक पहुंचा है कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों जमा करवाते हैं? कोई तो जवाब दे कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न, एक गुस्वारा है आपको, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि आपने इतनी आमदनी कमाई है तो फलां परसेंटेज के साथ हमें टैक्स जमा करवा दें। आज आपको कहा जाए जी कि 400 रुपये ट्रांसपोर्ट फीस में भर गया है और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स HOD के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं कि सर 400 पर मंथ हम नहीं देंगे ट्रांसपोर्ट में, ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ। तो क्या टैक्स इसी तरह हर शख्स खुशी से जमा करवा रहा है? सर हमने टैक्स पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स ये देती है कि जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज दी हुई है ना उनका टैक्स। जी, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन क्या फैसिलिटीज़ के बदले मैं टैक्स देना चाहूँगा? जब वो एक फलाई हुकूमत होगी तो क्या मैं टैक्स देना चाहूँगा? बस इसका आसान जो आंसर है वो ये है कि ये एक लॉ है और लॉ को इन्फोर्समेंट होना है। इसी तरह ऑडिट एक लॉ है, इन कंपनीज ऑडिट एक्ट जो 2017 है, इसमें एक प्रोविजन दी गई है कि एक शख्स जो भी कंपनी होगी वो साल में एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देकर ऑडिट करवाएंगे। तो इसी तरह इनकम टैक्स जो है वो एक लॉ है और इसमें एक प्रोविजन दी गई है कि हर शख्स जो कि टैक्सेबल इनकम कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो भी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाएगा। अब जो जमा करवाएगा वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा शख्स होगा। वो आपका क्लाइंट है और उस क्लाइंट को आपने कैसे लेकर चलना है, उसके साथ कैसे आपने बार्गेन करना है ना, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, ये आज हम सीखेंगे कि हमने उस क्लाइंट के साथ हमारा स्कोप क्या होगा। क्लाइंट जो आ रहा है एक बिजनेसमैन है जो टैक्स भी नहीं देना चाहता और उसको आप इस तरफ लेके आते हैं कि जी कि लॉ की प्रोविजन है और आप टैक्स दें। एक तो हुकूमत हो गई जो कि उससे टैक्स ले रही है, दूसरा दरमियान में हम वकील हैं जो उसको वे आउट बता रहे हैं जी कि आपकी इतनी टैक्स कैलकुलेशन बनती है और वो कहता है जी कि वकील साहब मुझे 1 रुपया भी जमा ना करवाना पड़े और मुझे आप जो फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो पूरी करवा दें। तो आपका जो रोल है वो इस दरमियान में है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान को भी सेटिस्फाई करना है और उस अपने क्लाइंट को भी जो उसका टैक्स बनता है वो उसे लेकर ख़जाने में जमा करवाना है। तो बेसिकली लॉ की रिक्वायरमेंट है और इस लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट को पढ़ते भी हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको इंड्यूस भी करते हैं जी कि आप टैक्स जमा करवाएं। अब टैक्स जमा नहीं करवाता कोई शख्स या फिर अगर वो फाइलिंग नहीं करता तो उसके साथ क्या होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिक पर्पज़ हमारा ये है कि हमारा जो क्लाइंट है हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो टैक्स की बेसिक पर डेफिनेशन है, यहाँ से एक भाई ने बताया जी कि स्टेट उसके बदले में हमें वेलफेयर के उसकी फैसिलिटीज़ देती है। बिल्कुल है, टैक्स एक कलेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका पर्पस यही है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट उन अपने शहरियों को उसकी वेलफेयर के लिए खर्च करे। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी हुई है कि कंसोलिडेशन फंड भी बना हुआ है, तो वो खर्च कहाँ पे हो रहा है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हमने इस इनकम टैक्स प्रोफेशन को एज ए कैरियर कैसे लेना है। और ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्योंकि ये ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ। मैं वो बात करूँगा जो आप दोस्तों के इंटरेस्ट की होगी, जिससे आप अपने इस इनकम टैक्स के कैरियर को एज ए ज्वाइन कर सकें।
और फिर जो प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स है, इसमें जो बेसिक है कि बेनिफिट प्रिंसिपल है। जब भी आपका क्लाइंट आएगा आपने उसे बताना है जी कि आपको उसके बदले में बेनिफिट भी मिलेगा। अरे वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर मुल्क है, आप टैक्स जमा करवाएंगे तो आपको उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान देखें हॉस्पिटल्स खोलेगी, सरकारी स्कूल खोलेगी और फलाह के लिए काम खर्च करेगी। लेकिन ये हमारी जो बेसिकल मैंटलिटी है वो रही है कि जी कि हमने गली में जो वासा का बिल है वो भी नहीं देना, वो भी कोशिश करनी है कि हम उसको कंसील करें। या इसी तरह कोई भी एक्सपेंस गली में अगर सफाई करने वाला आता है तो वो भी आपकी कोशिश होती है कि आप कूड़ा किसी के घर के बाहर फेंक आएँ, लेकिन आपके घर के पास से जो कूड़ा उठाने आता है उसको हम खर्चा ना दें। तो बेसिकली ये बड़ा मुश्किल जॉब है कि आपको कोई शख्स बेनिफिट भी दे रहा हो, इसके बावजूद भी आप अपना कंट्रीब्यूशन उस बेनिफिट में नहीं डालना चाहते। तो बेसिकली ये आज का सेशन इस पर्पज़ के लिए भी है और रू एसपी इस सिलसिले में मुबारकबाद की मुस्तहक है कि ये एक अवेयरनेस दे रहे हैं टैक्स कल्चर को। और ये हमने FBR को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमने कई बार कहा है जी कि आप जिस तरह ड्रामाज हैं स्कूल लेवल है उस वक्त से बच्चे की ग्रूमिंग करें। जैसे जापान में, चाइना में टैक्स कल्चर बच्चे को पहली क्लास से उसको 6वीं क्लास तक एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह हमें भी यहाँ पर टैक्स को वॉलंटरी जमा करवाने के ऊपर अपनी जिम्मेदारी अदा करने का बच्चों को शौक़ पैदा करना है। और फिर दूसरा प्रिंसिपल है कि एबिलिटी ऑफ टू पे प्रिंसिपल, उतना टैक्स लगाएं जितना वो शख्स पे कर सके। ये नहीं कि जी कि उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फैक्ट्री को ताला लगा कर हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ जाए। तो इस प्रिंसिपल के तहत ही पॉलिसी बनाई जाती है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। कि जितना जो शख्स गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहा है उसको उस बेनिफिट के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाए। फिर जो काइंड्स हैं वो काइंड में है रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। हुकूमत के पास अख्तियार होता है कि चाहे वो फिक्स इनकम पर टैक्स लगा दे कि जो शख्स भी जितना कमाएगा उस पर फिक्स इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरा है जी कि रिग्रेसिव टैक्स है कि जो कम आमदनी वाला शख्स है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ज़्यादा आमदनी वाले टैक्स पर जो ज़्यादा आमदनी कमा रहा है उस पर कम टैक्स लगे। और तीसरा प्रिंसिपल है कि प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव बेसिकली पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम राइज है वो प्रोग्रेसिव है कि कम आमदनी वाले से कम यूटिलिटी के हिसाब से टैक्स हमने पिक करना है या लेना है, कलेक्ट करना है। और जो ज़्यादा आमदनी है उस पर हमने उस पर परसेंटेज की शरह को बढ़ाते जाना है। इवन के अगर 250 मिलियन से ऊपर चला जाएगा तो उस पर सुपर टैक्स भी लग जाएगा। और इनकम टैक्स की जो तारीख है वो बरसगीर में 1860 में लगाया गया था और इसका जो बेसिक पर्पस था वो 1857 की जंग अजीम थी। उसके बाद उस जंग के खर्चे पूरे करने के लिए था और उस खर्चों को पूरा करने के लिए 5 साल के लिए लगा था और उसके बाद ये टैक्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर 1886 में लगा और फिर 1918 से 1979 ये उसके बाद 79 का जो ऑर्डिनेंस आया था का ऑर्डिनेंस आया है 2001 तक चला और 2001 के बाद अब जो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसके तहत अपने गुज़ारे जमा करवा रहे हैं। अब इसमें जो बेसिक रोल है वो 2 होते हैं। एक तो फाइलिंग है, आपके पास जो क्लाइंट आएगा आपने उसका सही जो ओरिजिनल टैक्स बनता है उस शख्स को नहीं मालूम कि जी कि मेरी साल की आमदनी कितनी है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट मुझे कोई बेनिफिट दे रही है तो वो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अब आपने उसके जो बेनिफिट्स हैं जैसे सैलरी पर्सन है, अगर उसने इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, बच्चों के अखराजात और अपने उसने कोई एजुकेशन के अखराजात पे किए हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपने उसको प्रोवाइड कर और जो उसका जो बेसिक टैक्स बनता है सैलरी पर्सन का वो आपने कैलकुलेट करके उसके आगे रखना है और इसके अगेंस्ट आपने फ़ीस लेनी है। और दूसरा जो बेसिक पर्पज़ है वो है कि अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव स्कीमें दे रही है तो उन इंसेंटिव स्कीम्स को आपने अपने क्लाइंट को अवेल करवा के देना है। इसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस।
अगर कोई आपको ऑफशोर कंपनी खोलनी पड़ती है या पाकिस्तान के अंदर आपको कोई टैक्स फ्री जोन बन जाता है या कोई ऐसी जगह से इंपोर्ट करने पे आपको बेनिफिट मिलता है, तो बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट आपने अपने क्लाइंट को आगाह करना है जी कि आपको फ़लाँ स्कीम ऑफ लॉ अवेल कर लेंगे तो आपको नॉर्मल टैक्स से भी कम टैक्स लगेगा। सिर्फ उसमें दरमियान में एक मिडल का रास्ता आपने निकालना है, और उस मिडल के रास्ते को जानने के लिए जो क्लाइंट होगा वो हमेशा टैक्स कंसल्टेंट के पास आता है। इसमें जो टैक्स अवॉइडेंस है उसमें आप मुकम्मल डिक्लेरेशन अपनी FBR को, गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी है, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो आपसे इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद जो टैक्स अवॉइडेंस होगा उसको आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद टैक्स एवेजन है। टैक्स एवेजन का मतलब है कि आपका टैक्स बनता था 2 करोड़ रुपए और आपने 2 करोड़ में से 20 लाख जमा करवा दिया है। बाकी आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आपने MBA किया है, MBA का कोई आपने अकाउंट्स पढ़ी है, तो हमने बेसिकली जो ये स्कीम ऑफ जो लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, वो आम लॉ से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स भी शामिल है। तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो नॉर्मली खर्चों को बढ़ाने के लिए फ़र्जी खर्चे डाल देते हैं। जैसे आप लोग हैं, घर से निकले हैं 500 रुपये लेके वालदैन से, और घर जाएंगे तो 2 पंचर भी डाले होंगे आपने कि जी अपने पेरेंट्स से कि जी के 2 पंचर हो गए थे, 200 रुपये मजीद खर्च हो गया, और आप सेकंड कप में आप काफ़ी पी रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो अकाउंटेंट होता है वो भी कोशिश उसकी होती है जी कि मैं एक्सपेंसिस बढ़ा चढ़ा के बयान कर दूँ और उसके एविडेंस बना कर रख लूँ, ताकि टैक्स जो गवर्नमेंट को है वो कम से कम देना पड़े। तो वो जो है टैक्स एवेजन, उसकी पेनल्टीज़ हैं। अगर आपके वालदैन को पता लग गया है जी कि आपने सेकंड कप से चाय पी है और वापसी में किसी दोस्त का बिल लेके ला दिया है जी कि ले जी एक बिल भी है लेकिन किसी दोस्त ने पिया है, तो जब वो पकड़े जाएंगे आप, तो फिर वो अगर तो वाले साहब अच्छे हुए तो 200 रुपये मजीद आपकी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर कान पकड़ा देंगे। तो इसी तरह फिर जो कान पकड़वाने वाली प्रोविजन है, बेसिकली कान तो पकड़वाया नहीं जाता, लेकिन टैक्स पेयर को जेल जरूर हो जाती है। इसके बाद पीनल प्रोविजन है नॉन फाइलर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है टैक्स लेने में नाकाम रही है। अब उसके बाद उन्होंने ये हल निकाला है जी कि जो शख्स टैक्स नहीं देगा उसके साथ हम क्या सलूक करेंगे। तो फिर उन्होंने एक टर्म इस्तेलाह एक नई जारी कर दी है, नॉन फाइलर या लेट फाइलर। लेट फाइलर की जो टर्म आई है वो इस साल आई है, इससे पहले था नॉन फाइलर। नॉन फाइलर जो होगा वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उस ट्रांजैक्शन पर जब टैक्स कटता है तो वो डबल टैक्स कटेगा। अगर उसके पर प्रॉपर्टी खरीदने गया है या प्रॉपर्टी बेचने गया है 3% टैक्स लगना था तो वो 6% हो जाएगा। लेकिन इस साल से उस पर जो नई इस्तेलाह आई है वो आई है लेट फाइलर की, कि अब उन्होंने जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स तो 3% से 12% कर दिया, और जो विद इन ड्यू डेट अपना टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाएगा तो उसको उन्होंने टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो डबल कर दिया है। और ये इसलिए कर दिया है कि हर शख्स विद इन ड्यू डेट अपना गुस्वारा जमा करवाए, ताकि जो गुस्वारा उसका राइट जो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो जाए तो हमारे जो हुकूमत के पास मैक्सिमम कलेक्शन टैक्स की हो जाए, ताकि जो हमारा मुल्क जो एक अनडॉक्यूमेंटेड भी है और दूसरे नंबर पर तरक्की पजीर भी है, तो हमारे पास IMF की किस्त उतारने के लिए जो मुल्क की जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंस हैं, उसको अदा करने के पैसे साल के दरमियान में आने की बजाय शुरू में ही आ जाएं। तो 30 सितंबर हमारी ड्यू डेट होती है और कंपनी के केस में 31 दिसंबर होती है। तो 30 सितंबर को हर शख्स ने अपना कौमी फरीज़ा अदा करना है कि अपना गुस्वारा जमा करवाना है। अगर वो गुस्वारा विद इन ड्यू डेट जमा नहीं करवाएगा तो फिर जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा या बेचेगा तो उस पर टैक्स का जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा। और जो बिल्कुल ही नॉन फाइलर होगा, जो ये भी बोथन नहीं करता जी कि मैंने गुस्वारा जमा करा के लेट फाइलर होना है, तो उसको जो 3% टैक्स प्रॉपर्टी खरीदने पर बेचने पर लग रहा है वो 12% लगेगा। और इसके बाद कुछ और प्रोविजन भी डाली है कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि
धमकी दी है, थ्रेट की है कि जो बेसिक जिम्मेदारी है यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की, ये हमारा बेसिक राइट है टैक्स पेयर का, फंडामेंटल राइट में आप सबने पढ़ा होगा। उस फंडामेंटल राइट में रोटी कपड़ा मकान आता है, उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप टैक्स जमा नहीं करवा रहे तो आपके पास फंडामेंटल राइट है, इससे भी आप निकल जाएंगे। फंडामेंटल राइट में आपके पास बिजली की प्रोविजन है, आर्टिकल मेरे ख्याल में 46 के करीब है कि बिजली पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएगी, सुई गैस दी जाएगी, 47 आर्टिकल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल हम जिम्मेदारी हमारी ज़रूर है, लेकिन जो शख्स टैक्स जमा नहीं करवाएगा उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसका राइट भी है, हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है, जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की उसमें भी अगर वो शामिल है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है जी कि हम आपको बिजली का मीटर भी आपका बंद कर देंगे, सुई गैस भी बंद कर देंगे, और अगर आपने बाहर के मुल्क सारा तफरी करने के लिए जाना है तो वो भी आपका जो पासपोर्ट होगा वो बैन हो जाएगा जब तक आप फाइलर नहीं बनते। और फाइलर कौन होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइलर किसने बनना है। इसी तरह इसमें थोड़ी सी रियायत भी दी है गवर्नमेंट ने कि स्टूडेंट्स हो गए जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या हज उम्रा के लिए अगर कोई जारीन जा रहे हैं तो उन पर चेकिंग नहीं होगी। अगर कोई पाकिस्तान से बाहर शख्स जॉब पहले से कर रहा था और उसके पास नाइकॉब का CNIC है, नाइकॉब CNIC के मीन्स के वो बाहर के एम्बेसी से शनाख्ती कार्ड बना हुआ है कि वो कई सालों से बाहर है, तो उस पर रूल अप्लाई नहीं होगा। बाकी जितनी भी हमारी अवाम है पाकिस्तान की, उनके बिजली के कनेक्शन, सुई गैस के कनेक्शन और बाहर के मुल्क सफ़र करने की ये सारी कटगन इस ऑर्डिनेंस में हुकूमत पाकिस्तान ने लगा दी है। अब हम आते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात करेंगे तो ये है डायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो शख्स कमा रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, जो सैलरी पर्सन है, तो उससे जो टैक्स लिया जाएगा हम उसको इनकम टैक्स कहते हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो सेल टैक्स है। सेल टैक्स के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये कंज्यूमर टैक्स है, इसको बाहर के मुल्कों में वैट भी कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कंज्यूमर से लिया जाएगा, इस पर कोई जो हमने पीछे पढ़ा है जी कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, फ्लैट टैक्स, वो अप्लाई नहीं होता रहे। एक तरह की फ्लैट ही है। अगर कोई घर में काम करने वाला है, माली भी है, मुलाजिम भी है, अगर वो भी 18% सेल टैक्स दे रहा है और अमीर से अमीर आदमी भी 18% सेल टैक्स दे रहा है। हर शख्स जो मोबाइल रखता है उस मोबाइल के ऊपर इनकम टैक्स भी कट रहा है और सेल टैक्स भी कट रहा है। जो ये सेल टैक्स है बेसिकली ये आपका मोबाइल के ऊपर जो चार्ज हो रहा है इसकी कोई परसेंटेज नहीं है और हर शख्स ही ये पे कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स का जो लॉ है वो 5 हेड ऑफ इनकम को डिफाइन करता है। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये इतना आसान काम है कि आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपने रखना है और आपके पास क्लाइंट होने चाहिए, तो आप इजीली इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवा सकते हैं। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक रिलेशनशिप होगा। दूसरे नंबर पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक किराएदार होगा, एक मालिक मकान होगा। तीसरे नंबर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, एक शख्स दुकान खोल के बैठा है, वो बिज़नेस कर रहा है। चौथे नंबर पर है कैपिटल गेन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई कीमती आपने एंटीक्स बेची हैं उस पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि आपने जो ऊपर के 4 हेड में कोई भी अगर वो इनकम का सोर्स नहीं बनता तो वो तमाम का तमाम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मीन्स कि अगर आप टीचर हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन जो होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। पेपर चेक कर रहे हैं तो इसको भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहेंगे। लेकिन इस पर थोड़ी सी अभी वजाहत आ गई है वफाकी तस मुदस्सिब की, वो मैं आगे जाके बताऊँगा जब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करूँगा। इसमें सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 बेसिकली चार्जेबल हमारा सेक्शन है कि कौन सा शख्स और कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी।
सेक्शन 4 है, इसके मुताबिक जो शख्स टैक्सेबल इनकम डिफाइन की गई है सेक्शन 114 में कि जो शख्स टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा है, तो 6 लाख से ज़्यादा जो भी साल के दौरान अर्निंग करेगा 6 लाख तक अजम्पशन दे दी है। इसके बाद फिर आपके स्लैब है कि 6 लाख से 12 लाख की इनकम होगी तो 5% है, 6 लाख से 12 लाख से ऊपर होगी तो उसका क्या स्लैब है, फिर 20 लाख से ऊपर होगी तो उसका स्लैब अलग हो जाएगा। मीन्स कि हम प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ जा रहे हैं कि जो शख्स जितना अर्न करेगा उसके हिसाब से अपना टैक्स जमा करवाएगा। और फिर 3 तरह के पर्सन उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं कि पर्सन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे और उनके लिए तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा है। एक इंडिविजुअल, जैसे जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वो ही इज़ अ इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल पर्सन होगा। दूसरे नंबर पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तो पार्टनरशिप एक्ट में जो फर्म बनती है उसको इनकम टैक्स लॉ में एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जो आसान अल्फाज में बात करूँगा कि जो इंडिविजुअल भी नहीं है, जो ईओपी भी नहीं है या पार्टनरशिप भी नहीं है, तो वो कंपनी है। कोई शख्स आपको पूछता है जी कि मेरा स्टेटस क्या है, कंपनी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंपनी में फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल है, ट्रस्ट भी शामिल है, एनजीओ भी शामिल है। इवन जिस इंस्टीट्यूट में हम खड़े हैं एक मरजान एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है तो ये कंपनी है, तो ये भी मरजान एजुकेशन ट्रस्ट कंपनी के स्टेटस में आता है। और इन्होंने भी एज ए कंपनी के तौर पर अपना गुसवारा जमा करवाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ही इस आपके इंस्टीट्यूट के लीगल एडवाइज़र हैं, टैक्स के मैटर भी हम ही देख रहे हैं। तो बेसिकली आगे जाकर ये स्कोप आप लोगों ने अचीव करना है, ये गोल आपने अचीव करना है। एज ए कैरियर आपने टैक्स का काम शुरू करना है और आपने इसको लेकर चलना है। ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं फिर जो इंडिविजुअल है और एओपी है, कंपनी है, इसमें भी आगे कैटेगरीज हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सहूलत दी हुई है कि वो अपना टैक्स जो जमा करवाएंगे वो सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पर जमा करवाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर अगर वो कोई उनकी इनकम है तो पाकिस्तान में टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने असासाजात जो उनकी तफसील देनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसकी तफसील वो ज़रूर देंगे। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसमें उसको भी वो आसानी है कि उसकी तफसील भी नहीं देनी, लेकिन जो अगर पाकिस्तान में जब भी आएंगे तो उसके बाद जब अगर रेजिडेंट बन जाएंगे तो फिर उन्होंने वो तफसील देनी है। और इसी तरह रेजिडेंट कंपनी है और रेजिडेंट एओपी है, मैं स्किप करता हूँ इनको, कि जिसका कंट्रोल पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर होगा तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी। अब ये है कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जो शख्स आपके पास आएगा वो क्या क्या चीज़ें जमा करवाएगा, किस बारे में आपसे हेल्प मांगेगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो शख्स जो आपके पास आया है वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। तो उस सूरत में आपको मालूम होना चाहिए कि उसने एनुअल टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा करवानी है, फॉरेन इनकम एंड एसेट की स्टेटमेंट जमा करवानी है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस जमा करवाने हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स की स्टेटमेंट जमा करवानी है अगर फॉरेन एसेट्स वेयर वैल्यू असीज ₹100 मिलियन। और भी इसी तरह कैपिटल एसेट्स हैं, फार्म 7E है, और ये जो फार्म 7E है 2022 से आया है। और इस पर जो शख्स भी अपनी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी के रेट गिरे हैं उसके बारे में बता दूं कि फार्म 7E की वजह से गिरे हैं। तो सेक्शन 7E हमारा बेसिकली ये आपको 250 मिलियन से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर टैक्स जमा करवाने को कहता है कि उसका 5% का 1% आपने जमा करवा देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जिन लोगों ने DHA में बहरिया में प्लाट लेकर रखे हुए थे, कई सालों से खाली थे, अब उन खाली प्लाट्स पर भी टैक्स लग गया है। तो जब खाली प्लाट पर टैक्स लगा है तो लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला है और फिर
जहाँ तक कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उनको मैक्सिमम रेट की, तो वहाँ पे स्विच कर गए हैं। तो फॉर्म 7E सेक्शन 7E जो है हमारा ये बड़ा अहम है और इसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 114 है कि कौन शख्स रिटर्न जमा करवाएगा। ऐसा शख्स जो 3 लाख रुपये भी अपनी सालाना इनकम कमा रहा है तो वो शख्स भी इनकम टैक्स जमा करवाएगा। जो 6 लाख रुपए है वो उसके लिए है जो कि उसने टैक्स भी जमा करवाना है। लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख से शुरू होती है, उसने सिर्फ डिक्लेरेशन जमा करवा देनी है अपनी। इसी तरह आज से कुछ साल पहले टेलीफोन होल्डर भी थे कि टेलीफोन होल्डर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का पाबंद था। इसी तरह आपके पास कोई फ्लैट है, कोई गाड़ी है, अगर वो मखसूस उसकी 500 स्क्वायर यार्ड व्हीकल 1000 सीसी से ज़्यादा की है और अगर उसकी अर्निंग 1 रुपये भी नहीं है, अगर उसकी अर्निंग अगर हो रही है वो कहीं पर एग्जाम टैक्स की हो रही है, तो फिर भी वो पाबंद है कि सेक्शन 114 में अपनी रिटर्न जमा करवाएगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो आपके फ्लैट है, मकान है, आपके पास कारें हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन मंगवा ले और रजिस्ट्रेशन मंगवा के चेक कर ले कि इसमें से इस शनाख्ती कार्ड पर कितने लोग फाइलर हैं, कितने नॉन फाइलर हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन की सिमें भी बंद हो सकती हैं, आपके घर के वापडा का मीटर भी बंद हो सकता है और सुई गैस भी बंद हो सकता है। तो बेसिकली हम जो वकील हैं वो वकील इसी चीज़ का ही अर्न कर रहे होते हैं। जितना थ्रेट अवाम को होगा, जितना पावर या फोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवाम पर करेगी तो लोग फिर ही हमारे पास आते हैं। अदरवाइज़ पहले ही हमने बात की है कि खुशी से कोई भी नहीं आता। आपका क्लाइंट अगर आप कचहरी में भी बैठे हैं तो आजकल जो महंगाई की शरह इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि कचहरी में जो वकील हैं अब वो भी लड़ाई झगड़े का केस उनके पास नहीं आते। और अगर कोई लड़ाई झगड़े का केस आता भी है तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा सुलहनामा पहले हो जाए, किसी मामले में पैचअप हो जाए दूसरी पार्टी के साथ, ताकि जो वकील को फीसें देनी है या 15 साल 20 साल एक केस चलना है, ये केस यहीं पर ही वाइड अप हो जाए। तो अब लोगों के पास इतनी बसात नहीं है कि कचहरी में आप लोगों को अपने मैटर्स या अपनी ऐसे समझ लें कि 2 अफराद में अगर 2 ख़ानदानों में अगर कोई लड़ाई हो गई है तो खुंदक में आ जाते हैं सिर्फ केस करने के लिए जी कि इस पर केस करें। अब अगर कोई केस बचे हैं तो फैमिली मैटर बचे हैं कोर्ट्स में कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो तबाही की तरफ जाता जा रहा है। और या फिर हमारे पास एक दूसरा तबका है टैक्स का, आपके पास बिजनेसमैन आता है, एक पाकिस्तान में जो खाता पीता शख्स आता है और जितनी आप उसे फ़ीस मांगते हैं वो आपको आपकी फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट, आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट हंसी खुशी देता है। वेल्थ स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है। अब मैं सिर्फ सैलरी इनकम की बात करूंगा कि सैलरी का गुसवारा हमने कैसे जमा करवाना है। जो सैलरी का गुसवारा है जो इनकम फॉर्म सैलरी है, ये आप खुद भी यहाँ पर सब के सब लॉ के स्टूडेंट हैं। आप FBR की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर IRS का एक मॉड्यूल है IRIS, कोशिश करें IRS के मॉड्यूल में जाएं, अपना लॉगिन बनाएं, एंटिन बनाएं। एंटिन बनाने कोई हर्ज नहीं है। वकील के लिए समझ लें पाकिस्तान में हर तरह का अजम्पशन है। आप वो क्लास हो, वो एलीट क्लास हो जो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल है वो आपको हासिल है। जो प्राइम मिनिस्टर को अगर प्रोटोकॉल हासिल है, अगर आप ट्रू लॉयर हैं, अगर आप हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं और जज के आगे खड़े भी होते हैं, तो समझ लें कि आप वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसकी वजह भी रही है कि हर रोज़ तो आपके जितने भी लीडर्स हैं इनके ऊपर केस हुए होते हैं, तो वो केस भी वकील ने ही जाकर फाइट करने हैं। तो चार 5 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई है कि एक वकील के साथ लाहौर में बदतमीज़ी की गई है, तो फिर उसने उसको आखिर तक पहुंचाया भी और आगे उस लोगों की जो जिन्होंने बदतमीज़ी की उनको सबक भी आएगा कि वकील जो एक काला कोट पहन कर खड़ा है तो उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। आपको अपने हकूक़ मालूम है और इन हकूक़ को ही लेकर आपने चलना है और कोशिश करनी है कि आप सब, क्योंकि जब हमने लॉ किया था उस वक्त सरकारी मुलाजमीन की बेइंतहा तादाद होती थी जो हमारे साथ लॉ करती थी।
इसी तरह कोई बिजनेसमैन है तो शौकिया ला करते थे। इसी तरह ज़मींदार अपने बच्चों में से एक बच्चे को कानून की डिग्री जो लेके देते थे कि जब कचहरी में जाए तो मेरा बच्चा काला कोट पहन के जाए। आप लोग वो हैं जो कि वाकई जो साकिब निसार साहब की जजमेंट आई है उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि सिर्फ 25 साल से कम का जो ला जो एडमिशन टेस्ट है वही बच्चा पास करके ला करेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग फ्यूचर हैं और हम उम्मीद करते हैं जी कि जब आप लोग फील्ड में आएंगे तो जितने भी कचहरी में लॉयर्स के बारे में बदगुमानियाँ हैं वो आप लोगों ने दूर करनी है। अब मैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हुए सिर्फ सैलरी के ऊपर बता दूं कि आपने आईआरएस का मॉड्यूल खोलना है, एनटीएन आपने अपना बनवा लेना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी कि आपने रिटर्न जमा करवाई है या नहीं करवाई, आप पे कोई पेनल्टी लगती है या आपने टैक्स बनता है, ये आपने सीखना है। आपने 181 का फॉर्म बनाना है अपना एनटीएन बनाने के लिए, इसको सीखना है। वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पर, आपने सीखनी है। कम से कम आप अपना गुसवारा खुद जमा करवाएँ और इसको सीखने के बाद रे मैं आपको गारंटी देता हूँ जी कि कल आपका अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वायलेशन के ऊपर पेनल्टी लगाती है तो वकील का केस को कोई भी जज नहीं सुनता और वकील के केस को वहीं पर पहली पेशी पर ही उसके फेवर में फैसला हो जाता है। तो आप इसको खोलें, आईआरएस को खोलें, आईआरएस को ओपन करके अपना एनटीएन बनाएं और सैलरी पर्सन जो आपके अगर रिश्तेदारों में कोई सैलरी है तो उसको कहेंगे कि अंकल आप क्यों फीसें दे रहे हैं, मुझसे अपना गुसवारा बनवाएं। कुछ भी नहीं करना आपने। इनकम फ्राम सैलरी का एक हेड होगा, उस हेड में जितनी उसने सैलरी ली है वो ले लेनी है और इसके बाद अगर उसको जो भी अलाउंस मिले हैं, जितने भी अलाउंस मिले हैं वो सब के सब उसके सैलरी का हिस्सा है। सन 2001 से पहले अलाउंसेस की बाइफिकेशन थी लेकिन वो बाइफिकेशन 2001 के ऑर्डिनेंस ने ख़त्म कर दी है। अब तमाम पर्क्स सिवाय मेडिकल के वो 10% की आपको अलाउ करता है। बेसिक आपकी पे स्केल के मुताबिक जितना आपका 10% पे स्केल है मेडिकल अलाउ करता है, तो उसकी हद तक आपको अजम्पशन है 10%। इसके अलावा सैलरी क्लास ने अगर बॉस ने उसको कोई आप अगर उसके एम्प्लॉयर ने बोनस दिया है तो वो भी टैक्सेबल है। अगर उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है उसकी अचीवमेंट्स पर वो भी टैक्सेबल है और जितनी भी सैलरी दी है साल के अंदर वो भी टैक्सेबल है। सिर्फ यहाँ पर जो एज मिला है इसमें वो हमारे टीचर्स हजरात को, इंस्टीट्यूशंस को, वो आज से कोई 1.5-2 साल पहले वफाकी टैक्स मुहतसिब ने डॉक्टर आसिम महमूद जहा साहब हैं, हिलाल इम्तियाज़, तारा इम्तियाज़, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी कि जो टैक्स जमा हो रहा है आपका सर्विसेज के ऊपर वो जमा हो रहा है 12%, तो 12% टैक्स जमा नहीं होगा। टीचर अगर जो आपके फैकल्टी टीचर होते हैं क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं तो वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के ही रिलेशनशिप में आएंगे, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जितना भी टैक्स कटा था वो सब वापस करने का हुक्म जारी कर दिया। होता ऐसे है कि जब आपका फैकल्टी टीचर आपको आकर लेक्चर देता है उसके बदले में जो उसको मुआवजा मिलता है, जो उसे हुक्म आने से पहले वफाकी टैक्स मुहतसिब का, उसको हम एज ए इनकम फ्राम अदर सोर्स लेते थे और इस पर सेक्शन 153(1)(b का 12% रेट लगाते थे अगर फाइलर है। अगर नॉन फाइलर है तो फिर वो 24% रेट लगता था और 24% टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करवा कर फिर जमा होता था। लेकिन वफाकी टैक्स मुहतसिब साहब ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अगर उस शख्स से कोई और काम नहीं है और सिर्फ वो फैकल्टी मेंबर है और साल में वो अगर 8 से 10 लाख कमा रहा है और सिर्फ वो एज ए विजिटिंग लेक्चर कमा रहा है, फैकल्टी में सॉरी लफ्ज़ गलत बोल गया, अगर विजिटिंग लेक्चर वो कमा रहा है तो अर्न कर रहा है तो उसको फिर आप जो लोअर स्लैब है 5% का 10% का उस पर ही रखें और उसके स्लैब में रह कर उसको टैक्स जमा उसे लें। और इसी तरह अभी रिसेंट जजमेंट आई है, रिसेंट फाइंडिंग आई है वफाकी टैक्स मुहतसिब साहब की कि जो पेपर मार्किंग होती है उसके ऊपर भी आपने पेपर मार्किंग का आपने इनकम फ्राम अदर सोर्स नहीं इसको कंसिडर करना, इसको इनकम फ्राम सैलरी ही कंसिडर करना है। कई लोग खुश हैं इस पर, वो लोग खुश हैं जिनकी लो सैलरी थी वो अब रहेंगे 12 से आ गए हैं 5% पे रहा, अगर वो 6% पे आ गए हैं। लेकिन जो हाई रेट वाले हैं जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 5 से 6 लाख रुपये सैलरी होगी तो उनका स्लैब अगर वो पेपर मार्किंग करेंगे तो फिर उनका स्लैब भर जाएगा। वो फिर हाई स्लैब अगर 25% पर रेट पे हैं तो फिर 25 से 30% ही
स्लैब पर रहेंगे। तो इस तरह अगर किसी शख्स ने गोल्डन हैंड चेक ले लिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके पास अगर आखिरी साल में एक साल में 50 लाख मिलता है, तो फिर गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है जी कि वो 3 साल की एवरेज के ऊपर अपना गोल्डन हैंड चेक को टैक्स दे सके। और इसी तरह अगर सैलरी पर्सन है और उस सैलरी पर्सन ने कोई एरियर ले लिया है, मीन्स के आप यूएसबी में लेक्चरार हैं, आपको साल के अंदर 10 महीने की सैलरी मिलती है, 2 महीने की नहीं मिलती, और वो 2 महीने की अगले टैक्स ईयर में जाके मिलती है, अगले साल में मिलती है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, टैक्स ईयर भी कहते हैं। तो उस सूरत में आपके पास राइट है कि जिस साल को वो सैलरी मिलनी थी उस साल के अंदर ही उसको क्लब कर अपना टैक्स जमा करवाएं। अदरवाइज़ अगर 14 महीने की सैलरी आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपका स्लैब है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज़ मैं फिर अपनी प्रेजेंटेशन वाइंड अप। माइक दें जी इधर। मुझे मालूम है जी कि टैक्स का सब्जेक्ट बड़ा खुश्क है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको इंटरेस्टिंग किया है। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो लॉ की इन्फोर्समेंट है वो आपने करवानी है, और लोग आते भी इसीलिए हैं कि वो लॉ उनको बाइंड करता है कि वो आपके पास आएँ, अदरवाइज कोई भी ना आए आपके पास। सर आपने भी बताया है कि डीएचए में और जो प्लाट है पे कभी टैक्स लगता है, तो ऐसी क्या सरमायाकारी है जिसकी वजह से कम मतलब बचत हो सके टैक्स की? सरमायाकारी तो आप बिज़नेस करें, बिज़नेस में पैसा लगाएं, रोज़गार दें। पिछले 20 साल से नई फैक्ट्री नहीं बनी, पिछले 20 साल से नया रोज़गार नहीं आया। जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और 9/11 का वाक़या हुआ है, तो लोगों ने अपने इंडस्ट्री को, आप बेसिकली जो फ्रांस का सवाल है, फ्रांस में देखा जाता है अर्निंग पर शेयर रेशो निकलती है कि मुझे किस काम में कितना परसेंटेज अर्न मिलेगा। अगर आपको एक बैंक स्कीम दे रहा है, वो आपको कहता है जी कि मैं आपको 12% मुनाफा दूंगा, दूसरा बैंक आपको 15% का मुनाफा देता है, तो अपने डिपॉजिट आप 15% वाले के पास जमा करवाएंगे, 12 पर नहीं करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर जी। ये ना बेसिकली इनका क्वेश्चन ये था कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। सर सहमनी से वो सवाल है कि हम पैसा निकाल के कहाँ लगाएं। नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि पैसा निकाल के कहाँ लगाएं, उन्होंने पूछा कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो जो हुकूमत उसका टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। देखें जी, आप वकील हैं, आपने टैक्स लेके देना है गवर्नमेंट को, ये आपका बेसिक एम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिजनेसमैन किसी के साथ भी नहीं खड़ा। बिजनेसमैन आपको इस्तेमाल करेगा, कल कोठी बना लेगा, मर्सिडीज भी ले लेगा, लेकिन उसने वही फीस देनी है आपको जो आज से 10 साल पहले दे रहा होता है, उसमें उसने इंक्रीज़ नहीं करनी। अगर इतना अच्छा बिजनेसमैन मिल जाता है, फिर मैं आपको उसके तरीके होते हैं, वो कहता है जी कि जितने मैंने अर्निंग की है मैं आपको वकील साहब आपको भी उसमें हिस्सा दूंगा, तो फिर उसके हिस्से, फिर उसके परसेंटेज और उसका काम करने की नेचर फिर हमारी तब्दील हो जाती है। फिर जब आप इस लेवल पे आएंगे इंशाल्लाह सीख लेंगे, वो आपको फीस के साथ दे चलना होता है हमने। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शेयर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, माइक दे उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक क्वेश्चन किया है। और नाम बताएं जी, नाम आपका? तलाल अहमद सर। तलाल, किस क्लास में आप? सर ये 2B। 2B। अच्छा सर ये क्वेश्चन ये है, अगर हुकूमत किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्सेशन लगाती है तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो टैक्सेशन लिमिट वैलिड है या नॉन वैलिड है? हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की 4th शेड्यूल है, वो आपने देखना है। एंट्री नंबर 46, 47, 48, 49, 50। तो जो भी टैक्स लगेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के लगना है। गवर्नमेंट के पास जी टैक्स सीधा करके भी लगाने का अख्तियार है, उल्टा करके भी लगाने का अख्तियार है। गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है फिर वहाँ पे खामोशी होती है। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि क्या टैक्स जो लगाया गया है वो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में, या जो हमारी एंट्री नंबर 46, 47, 48, 49, 50 जो 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं, उसके अंदर उसका मैकेनिज़्म फॉल करता भी है कि नहीं करता।
अगर वो उस एंट्री में फ़ाल करता है, जैसे 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज टैक्स का अख्तियार सूबों को दिया गया है, अब अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। रहा अगर सूबा टैक्स लगाता है गुड्स के ऊपर तो उसके पास राइट नहीं है। तो बेसिकली ये 18वीं तरमीम के पास जो चेंजेज आई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आई हैं। ये फरासत अली भट्टी साहब भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, तशरीफ़ लाए हैं। सवाल ये है कि इस तरह होते हैं सर जिम्मेदार लोग लैंड प्रॉपर्टी में, सर उन्होंने जो टैक्स पे करना होता है तो वो उनके एसेट्स जो होते हैं वो मतलब अगर मैक्सिमम शो भी करवा दें तो बहुत सारे इस तरह का सिस्टम है, ये कल्चर है लैंड का, तो वो बहुत सारा मुश्किल है, डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है, तो वो उनके ना काफ़ी जो है ना छुपे हुए होते हैं या उनको पता नहीं होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर वो टेस्ट रिटर्न करते हैं सर तो वो जो होते हैं फाइलर जो बनते हैं तो बाद में ये होता है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये डिपार्टमेंट वाले टैक्स वाले कि आपके अपने जो है तमाम एसेट्स शो नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जी, इन्होंने टिपिकल सवाल किया है ज़मींदारों के बारे में कि ज़मींदारों को नहीं मालूम होता कि उन्होंने डिक्लेरेशन क्या देनी है। पहले नंबर पर तो ज़मींदार के ऊपर टैक्स है, वो सेक्शन 41 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो उसको अज़म करता है। ये पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट है 1997 का, उसके तहत उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है, FBR को जमा नहीं करवाना। दूसरा आपने कहा है कि हमारे जो असासे होते हैं उस पर सेक्शन 7E का टैक्स लग सकता है ज़मींदार का, और ज़मींदार को मालूम नहीं होता किसी को उसने वो टैक्स कब कैसे जमा करवाना है। उसका सलूशन यही है कि वो अच्छा वकील देखे, अच्छा टैक्स कंसल्टेंट देखे, उसकी सर्विसेज हायर करे, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, FBR के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसके सामने उसका वकील है वो फेस करे। बेसिकली जो हम फीस ले रहे होते हैं वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को, उसके इश्यूज़ को और उसकी टेंशन को हम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो इसका हल यही है कि अच्छा वकील कर ले वो। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. And I warmly welcome to other guests who just arrived, and my humble request to esteemed guest, conclude your lecture due to the Ramzan and other activities within 10 to 15 minutes. Thank you. And next, I would like to invite our chief guest, a respected figure in the field of taxation and the president of Multan Tax Bar Association, Malik Khadim Hussain Mithla. Please sir, come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम स्पीकर इमरान गाजी साहब ने लॉ और उसके बारे में बहुत सारे यानी जो वो एक समझते थे कि बच्चों को पता होना चाहिए, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए ताकि वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो की हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कि हमारा नौजवान तबका, यानी मेरी मुराद आप लोगों से है जिन्होंने आगे मुल्क का बागडोर संभालनी है, उन्होंने कोई दिलचस्पी इस तरह की नहीं दिखाई कि कोई चार्मिंग है इस प्रोफेशन में या नहीं है, मतलब है, या कोई क्वेश्चन इस तरह के नहीं राइज किए कि जिससे इनका इंटरेस्ट ज़ाहिर हो रहा हो कि ये एक प्रोफेशन है। आप लॉ कर रहे हैं, मैं आपको दो चीज़ें खसूसी तौर पे वो करना चाहूँगा। ये टैक्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको गवर्नमेंट इनकरेज करती है, इसके बरखिलाफ सिविल या क्रिमिनल जो लिटिगेशन है उसको डिस्करेज करती है। तो ये आइंदा वक्त के लिए और आइंदा उसके लिए ये तकरीबन हर बंदा टैक्स का गोशवारा फाइल कर रहा होगा, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो, चाहे सेल्स टैक्स की रिटर्न हो। इसी के साथ यानी एक और यानी दो लॉ हैं टैक्स कलेक्शन के, एक वफाक मतलब है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसकी टैक्सेशन करता है और टैक्स वसूल करता है, उसके साथ प्रोविंसेस को भी यानी
कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी है कि वो भी टैक्स कलेक्ट करें, वो भी यानी एक एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, यानी वो भी आप लोगों ने ही उसको वो करना है, प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे तो मतलब है आपके लिए वो राहें उसकी भी खुलेंगी। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, उसके साथ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, वो भी आपके लिए राहें खोल रहा है। इसी के साथ इनकम टैक्स और वफाक के जो भी टैक्सेशन के वो हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक चार्मिंग वो होनी चाहिए कि जो है ना। इसी के साथ मैं एक चीज़ और यानी एक सवाल हुआ कि रिटर्न के बारे में कि हमारे इमरान गाजी साहब ने कोशिश की उसको प्रेजेंट करने की, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स की तरफ से कोई इस तरह का फिर दिलचस्पी नहीं जाहिर हुई तो उन्होंने अपने जो एक रूटीन का लेक्चर था उस पर वो किया। देखें, आप अपने घर में रह रहे हैं, उसमें अगर आप कमा नहीं रहे और फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आपको घर वाले भी मतलब अच्छा तस्वर नहीं करते उसकी निस्बत जो फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहा है या कमा रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क का भी यही वो है, अगर हमने कमाना है और मुल्क के अंदर उसकी इकानमी में कंट्रीब्यूशन करनी है टैक्स की शक्ल में, तो हमारी इज़्ज़त भी होनी है, मुल्क भी खुशहाल होगा और वो यानी हमारे इदारे भी तरक्की करेंगे, हम आवाम भी तरक्की करेगी और जो है ना अपना मुल्क भी एक अच्छे उसमें यानी उसकी सिक्योरिटी भी एक अच्छे अंदाज से हो रही होगी। आपको जो यूटिलिटीज़ के या यानी सिविल सर्विसेज किस्म की जो गवर्नमेंट दे रही होती है आपके टैक्सों से ही कलेक्शन करके, हम ये तो सोच रहे हैं कि अच्छा कि हम टैक्स से कैसे बचें, लेकिन ये नहीं हम उस पर फोकस करें कि हमने टैक्स देना है और उसको यानी अपनी फलाह के लिए किस तरह गवर्नमेंट को हमने यानी मजबूर करना है कि वो हमारी फलाह के लिए ही इस्तेमाल करें हमारे टैक्सों को। तो ये चंद चीज़ें थी जो यानी बच्चों के मैं समझता हूँ कि आप लोग चूँकि लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए एक है टैक्सेशन का, एक है अकाउंटेंसी का और तीसरा है ऑडिट का, गालिबन ऑडिट है ना। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में BCom में अगर आप किए हों और वो 1 साल के लिए किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास अच्छी तरह मतलब अपना वो लगा ले, कम से कम 1 साल की रिक्वायरमेंट है, तो उसको FBR की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का मतलब एक लाइसेंस भी हम कहते हैं, तो वो मतलब है जो मौजूद है। उसके बाद अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप फिर ऑलराउंडर हैं, आप को मतलब है उसकी ITP की इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी कोर्ट में यानी वो हो सकते हैं, यानी अगर लोअर कोर्ट के का लाइसेंस है तो फिर आप FBR के किसी भी यानी एजेंसी के इदारे के पास या अथॉरिटी के पास आप पेश हो सकते हैं, इवन ट्रिब्यूनल तक। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट में भी केसेस आप प्लीड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी आप वो कर सकते हैं। ये इसमें ये बुनियादी ज़रूरत है। हाँ, लेकिन लॉ ग्रेजुएट के लिए मैं एक बल्कि हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाजी साहब और मियाँ अब्दुल सत्तार साहब दोनों मौजूद हैं। मैं CA में मैंने आर्टिकल्स किए हुए हैं, बुनियादी पीछे मैंने जो है ना कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी अकाउंट्स की नो हाउ कुछ बेहतर है इन्हीं असातिज़ा किराम की। लॉ की भी इन्होंने सिखाया जो मैं मतलब है वो करता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ ग्रेजुएट है उसे कम से कम कॉमर्स की नो हाउ ज़रूर होनी, अकाउंटेंसी की नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने पहली रिटर्न फाइल करनी है तो आपको नफ़ा नुकसान बनाने के लिए वो एक टेक्निकल एक वो है, वो ज़रूर समझ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है तो उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री लेके आनी है, अगर डिग्री है कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छा, और अगर यानी MCom या वो तो फिर बहुत ही अच्छा, या अगर CA में कोई इस तरह की आप कर लेते हैं ट्रेनिंग, किसी भी सीनियर से ट्रेनिंग ले लेते हैं यानी अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में,
तो यानी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 2-3 महीने का डिप्लोमा कम से कम ज़रूर करना चाहिए कि जिसमें आपको नफ़ा नुकसान बनाने का पता हो कि कौन से एक्सपेंसेस हमने चार्ज करने हैं, कौन से यानी एक्सपेंसेस में क्लेम नहीं करने। इसी तरह बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होते हैं, नॉर्मली हम समझ रहे होते हैं कि ये नफ़ा नुकसान का हिस्सा है, लेकिन वो यानी बैलेंस शीट का हिस्सा जा बनते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कम से कम यानी नो हो, बेसिक न हो, ज़रूर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज आपके इदारे में आने का इत्तेफाक हुआ और उन्वान या टॉपिक ये है कि आपने इस टैक्स प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करने की क्या बुनियादी चीज़ें हैं, क्यों आपके अंदर ये दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जाए। बुनियाद ये है कि चूँकि आप लॉ के प्रोफेशन में हैं और लॉ के प्रोफेशन चूँकि ये बहुत वसी सब्जेक्ट है। जैसे आप जानते हैं कि आप अगर कुछ कचहरी में जाएं तो वहाँ के भी कुछ मशहूर होंगे कि ये सिविल को करते हैं, ये लोग सिविल का काम करते हैं, और ये क्रिमिनल का करते हैं, ये रेवेन्यू का करते हैं, ये जनाब लेबर का काम करते हैं, ये बैंकिंग केसेस को डील करते हैं, ये टैक्सेशन मैटर को डील करते हैं। इस तरीके से ये चूँकि बहुत वसी फील्ड है, उसमें से एक टैक्सेशन की फील्ड है। लेकिन बाकी फील्डों में और टैक्सेशन की फील्ड में मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि बुनियादी फ़र्क ये है कि आपका ताल्लुक़ एक माली आसूदा लोगों के साथ पड़ता है, इसलिए उनकी कैपेसिटी टू पे जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर। क्योंकि अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा किया है तो उसके पीछे ये नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले जो है ना वो मालदार थे तो इसलिए जो है ना वो झगड़ा किया है, तो वो किसी भी बात पे झगड़ सकते हैं और ज़ाहिर के फिर कोर्ट कचहरी में उन्हें आना है। तो इसमें बेसिक जो तरकीब है, जो उन्वान है, उसके मुताबिक ये एक रिवार्डिंग प्रोफेशन है, रिवार्डिंग प्रोफेशन। और फिर आए दिन हुकूमत की वजह से, हुकूमत की पॉलिसियों और कानून की वजह से इसके अंदर दिन ब दिन इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। क्यों कि हमारे मुल्क के अंदर दो बातें हैं। बात यह है कि एक तो हमने आवाम के लिए भी जो है उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करनी है। जब आवाम को फैसिलिटीज़ मुहैया करनी है तो उसके लिए वसाइल की ज़रूरत है। तो वसाइल कहाँ से आएंगे? तो वसाइल वो भी आवाम से ही जो है ना कलेक्ट करने हैं, तो उनके लिए ये टैक्सेशन है। हमारे बहुत सीनियर मेहरबान बैठे हैं जो है हयात साहब, ये इस बात को जानते हैं कि इसका कैपेसिटी टू पे के मुताबिक जो है ना ये टैक्सेशन के असूल बुनियादी तौर पर होते हैं कि जो जितना ज़्यादा अर्न कर रहा है उसके मुताबिक अपने अपने हिस्से का, जैसे कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, यानी अपनी जिसामत के लिहाज से जितनी उसकी जिसामत है, जैसे उसके खाने पीने के हिसाब से भी उसने ज़्यादा खाना है, तो इसलिए तरीके से अगर उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं तो अपना हिस्सा उस गवर्नमेंट के ख़जाने के अंदर भी ज़्यादा ऐड करेगा ताकि जनरल पब्लिक की जो है ना फलाह के लिए वो फंड इस्तेमाल हो सकें। तो ये बुनियादी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक रिवार्डिंग प्रोफेशन है। अब इसकी जैसे मैंने कहा कि हर साल आप देखते हैं कि जून के अंदर, अब जून जो है ना मार्च का शुरू है महीना, तो अभी से जो है ना इस बारे में काफ़ी सेमिनार्स और मुख्तलिफ जो है ना ये ब्रीफिंग और मीटिंग चलती रहती हैं इस उन्वान पे कि कौन से टैक्सेशन को इसको कैसे इम्प्रूव करना है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अभी तक जो है टैक्स नेट में नहीं हैं, तो उनको लाने के लिए या ज़्यादा प्रिविलेज क्लास जो है उनसे ज़्यादा कैसे टैक्स वसूल करना है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इंसान ने, आप एक लॉ के प्रोफेशन में आए हैं, ज़ाहिर है कि हर एक का अपने अपने जो है ना दिलचस्पी का अंदाज होगा। कोई सिविल मैटर की तरफ जाएगा, कोई जो है ना क्रिमिनल की तरफ जाएगा, कोई रेवेन्यू की तरफ जाएगा, कोई बैंकिंग की तरफ जाएगा, कोई लेबर की तरफ जाएगा। तो उनमें से मैं समझता हूँ वो सारे प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, उसमें भी कोई हम किसी की नफ़ी नहीं करते। लेकिन इस प्रोफेशन के अंदर आपका ताल्लुक़ एक माली तौर पर जो आसूदा लोग हैं उनसे पड़ता है। फिर दूसरी बात कि ये आपके क्लाइंट मुस्तकिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर साल अपने जो है जो जिस शोबे से भी है तनख्वाहदार है तो उसने हर साल तनख्वाह लेके उसको गोशवारा देना है।
बिजनेस कम्युनिटी का है तो जो है ना बिजनेस करने के बाद साल के बाद जो है ना उसके लिए भी लाजमी है। गर्ज है कि हर साल वो आपका एक मुस्तकिल आपका क्लाइंट है। दूसरी फिर जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करता जाता है उसी तरीके से वो अपने दूसरे फैमिली के मेम्बरान को भी उस टैक्स रेट के अंदर जो है ना इजाफा करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा कि ये एक बहुत रिवार्डिंग प्रोफेशन है और बहुत जहाँ माली तौर पर भी इसके अंदर जो है इसके अंदर फ़वायद हैं, उसी तरीके से रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ भी के हवाले से भी। क्यों कि आपका ताल्लुक़ जो है हर शोबे ज़िंदगी के जो मतवब्बिल अफराद हैं उनके साथ होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के हैं, आर्मी ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चूँकि या बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, उन सारों ने भी अपनी आमदनी का जो है ना गोशवारा देना है। और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी ज़्यादा जैसे आप एक कि डॉक्टर के जो एक अच्छी तरह मिसाल देनी चाहिए कि डॉक्टर का एक जो आपका डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, वो उसके फैमिली हिस्ट्री या फैमिली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से आप बतौर उनके फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, क्योंकि आपके सामने कोई चीज़ अगर कोई आदमी अपनी घर वालों से तो वो चीज़ छुपा सकता है और ऐसा करते भी हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट डॉक्टर लीगल एडवाइज़र से वो चीज़ छुपा नहीं सकते। अगर वो छुपाएंगे तो उसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी तो सिर्फ इतनी हम्बल सबमिशन ये है कि जो भी दोस्त इस प्रोफेशन की तरफ आना चाहें वो ज़रूर आएँ और इसको मुस्तकिल तौर पर जो है, चूँकि जैसे कि पहले मलिक साहब ने भी और हमारे इमरान साहब नौजवान ने भी ये सारी बात बताई कि जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं और मेहनत के नतीजे में आपके क्लाइंट आपसे मुतमईन हैं तो वैसे वैसे ही वो ख़ुद भी आपके पास जो है ना मुस्तकिल चलते रहेंगे और दूसरों को भी आपकी एक पब्लिसिटी का भी ज़रिया वही बनते हैं। तो लिहाजा ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के अंदर लेकिन बुनियादी कुछ चीज़ें हैं हर प्रोफेशन के लेवल के, चूँकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो है आपकी अकाउंट्स पर भी काफ़ी हद तक दस्तरस होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने अपनी फिगर ही उनको जो है ना वो अरेंज करना होता है कि कहाँ पर उसको प्रॉफिट कम करना है, बढ़ाना है, ये जो भी है। तो उसके लिए अकाउंट्स की भी दस्तरस हो। और आजकल के दौर में आईटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक आईटी के हवाले से ही सारी चीज़ें जो है ना आपने आगे भेजनी है। इसी तरीके से लॉ के तो आप स्टूडेंट है ही हैं, तो आपने उसको जो है ना आपका अबूर होगा, ज़ाहिर है कि जितनी जितनी आप उसके अंदर जो है ना आगे उसमें प्रैक्टिस आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी और आपका काम भी सारा जो है ना बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपको सब हज़रात को इस बात की नवीद भी देता हूँ, मुबारक भी देता हूँ कि आप एक रिवार्डिंग प्रोफेशन एज ए होल जो है लॉ का प्रोफेशन, जैसे इमरान साहब ने एक बात और भी की कि पहले काफ़ी लोग जो है ना एज इसको सिंबल स्टेटस के तौर पर इस प्रोफेशन में आते थे, ख़ास तौर पर डॉक्टर जो है ना ज़िम्मेदारों के बच्चे और दूसरे जो है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो प्रैक्टिस में नहीं होते थे। लेकिन अब जो लोग इसमें आ रहे हैं वो इसको बतौर प्रोफेशन अडाप्ट करने के लिए ही इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए आपका ताल्लुक़ जो है उन लोगों के साथ है कि जो वाकई ही इसको बतौर प्रोफेशन अडाप्ट करेंगे तो और उससे जो है ना इंशाअल्लाह आपके वर्थ भी बनेगी और आपके इदारे के भी, और जिन जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ वास्ता होगा उसके मुताबिक भी आप जो है ना आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में कोई मज़ीद अगर बात को पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Now I invite Muhammad Yunus Ghazi, a highly respected chartered accountant and prominent figure in the taxation community. Please, sir, join us on the stage. And, sir, summarize your lecture due to namaz time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बातें आज टैक्सेशन के मुतल्लिक़ की हैं या टैक्स प्रोफेशन के मुतल्लिक़ की हैं, इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ का मतलब ये होता है कि आप कचहरी, हाई कोर्ट वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन बताना चाह रहा हूँ उस प्रोफेशन में और टैक्स का प्रोफेशन अडॉप्ट करने में क्या फ़र्क है।
पहली तो बात यह है कि जैसे अभी मेतला साहब ने बताया कि ये जो है ना आपका जो क्लाइंट एक बार बन जाता है वो नॉर्मली आपका परमानेंट क्लाइंट होता है। ये नहीं कि बंदा जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ थाने तक कोई एक और वकील है, अगले स्टेज पे जाके उन्होंने कहा जी नहीं जी वकील बदल लो, अगले स्टेज पे वकील बदला गया, अगली कोर्ट में गया तो वहाँ वकील बदला गया, फिर आगे चला गया। और अगर वो से लेते हैं वो जो गवर्नमेंट यानी हम अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ से उनको जाती है, नागरा से जाती है इन्फॉर्मेशन। इसी तरह ये आपकी एयर टिकट है वहाँ से ये वो जाती है इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास। बैंक में अकाउंट है तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है एफबीआर के पास। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देख के आपके घोषवाले को एनालाइज करते हैं कि आया इन्होंने अपनी डेक्लेरेशन प्रॉपर दिखाई है या नहीं दिखाई। अगर कोई कमी बेशी है, अगर वो महसूस करते हैं कि वो प्रॉपर्टी मिस कर दी या बैंक अकाउंट मिस कर दिया या सोर्स ऑफ इनकम आपने मिस कर दिया, मत करो, आपने बिजनेस इनकम आपकी आपने डिक्लेयर कर दी, प्रॉपर्टी इनकम भी है आपकी तो वो आपने डिक्लेयर नहीं की, तो इन्फॉर्मेशन मौजूद है एफबीआर के पास, वो आपको नोटिस करेंगे कि अच्छा जी फलां चीज आपकी जो है ना मिस है। फिर आपने जवाब देना है कि अच्छा जी आपकी वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है या मतलब बाजू का अथॉरिटी समझने में गलती हो जाती है उनको, तो फिर आपने जवाब देना है।
तो वो जब आप जवाब देंगे तो फिर आपका यही वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बच्चे ये कर रहे थे कि अच्छा हम टैक्स से कैसे बचे, उस बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टैक्स की जो है ना 2 तरह से यानी उसकी एप्लीकेशन होती है। यानी एक को हम इस तरह कहें कि टैक्स हम अवॉइड करना चाहते हैं, दूसरा है कि इविजन करना चाहते हैं। इविजन है क्रिमिनल एक्टिविटी, आपका ड्यू टैक्स है, आप उसको इविजन करते हैं अथॉरिटी से यानी छुपाते हैं, तो वो आपका यानी क्राइम बन जाता है। अच्छा, इसी तरह यानी जो एवॉइडेंस है, असल काम है आपका वही एक लॉयर का, एडवोकेट का, एक कंसल्टेंट का, एक एडवाइजर का काम ही यही है कि उसने टैक्स को अवॉइडेंस आपको बतानी है आप अपने क्लाइंट को। देखें, हर कानून हर चीज का अहाता नहीं कर रहा होता, कहीं पे कई किस्म के लूज होल होते हैं, या आप अपनी से लॉ की समझ बूझ से या आप अपनी एक्सपर्टी से कुछ ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं जिसमें टैक्स भी बच जाता है देना, और आप जो है ना गोशवारा भी आपका लॉफुली ठीक होता है। तो इसको यही काम है आपका, एक कंप्लाइंस कैसे करनी है लॉ की, और फिर उसमें से रास्ता आपने ऐसा निकालना है कि जिससे आपके क्लाइंट को बेनिफिट हो। या अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी असेसमेंट या ऑर्डर्स आ गए हैं आपके खिलाफ कि उन्होंने टैक्स अनड्यू लगा दिया है, तो उसको आपने कोर्ट्स में जाके लिटिगेशन करनी है कि कोर्ट्स को बताना है कि ये हम पे ड्यू टैक्स बनता था और ये हमने अदा कर दिया है या हम अदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये काम है असल में आपका। और कोई क्वेश्चन अगर किसी साथी की तरफ से? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। तमाम स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में ही रहेंगे। सर, एचओडी साहब।